Assalamu alaikum everyone. We'll just move on to our next segment, which is regarding what malls, which is now the new ecosystem for retail. We believe कि जो brands के clusters होते हैं वो coexist करते हैं with malls. Entertainment, which has become one of the main avenues for most consumers, is through the malls. And for us retailers and for food and beverage businesses as well, higher footfall means higher sales for us. So malls are the future. They're a win-win for everyone. But what's critical now is to understand through people like, we've been joined by Faisal, Nadeem from Dolmen Group. Yasir Saab is already here. Usman from Outfitters and Tariq Saab. So we will try to take the idea from the mall owners themselves, that where do they think the next state of malls innovation will result in a win-win for both of us. Faisal, if you can hear us, do let me know. So I'll put the first question to you. Yes, Wasif, I can hear you. Okay, great. So, Faisal, we've been discussing this with you personally, with Yasir as well, often, that initially, if you remember 5 years ago, there was some, the relationship between the malls and the brands wasn't as smooth as it is today. We've understood that the partnership, that's how we're working. Now, looking into the future, 5 years from now, malls are mushrooming all over the country. What do you think is going to be the differentiating factor which will make a mall stand out versus the rest, whether in an area like a tier 1 city, and whether you could also comment on tier 2 cities or secondary cities if you can? Okay, I think, Wasif, the main thing we have to look at is, of course, as retail is evolving, we've all been learning from different, the process. Because when we started off malls, they were about guessing. It's about guessing the size of the mall, the size of the outlets, the type of retailers, and the retail themselves were coming in and testing out what would work, what would not work. You would have a lot of initial turnover, settling in problems, inventory issues and things like that. I think we're now in a bit more mature market with a lot more data available. There are a lot of retailers already present in tier 1 and tier 2 markets. So now you're working with a more complete data set, and I think it's much more easier to forecast demand. On being able to deliver, actually, when we look at malls, there's two kind of environments we define. One is a place where you go for an experience, where you go for convenience, where you go for entertainment, which is the big mall, the large mall experience. And one is a place which is built more like a departmental store, which has a collection of brands, but it's more built to be an easy place where you can come in and take multiple brands under one roof. So it all depends on the type of development that you're looking at, and then how that adapts to a particular city. So if you're doing a large size mall, then obviously it has to be in a tier 1 city with a lot of population, and then a lot of option for tourism, or people coming in from outside the city to keep that footfall and experience running. Whereas if you're in a tier 2 city, then obviously it would be a different experience, and you would more focus on what the local population demands on a regular basis and try to give that. So I think demand forecasting is actually one of the key factors which will go a long way. And I think you need both the information which the mall collects and then the information which the retailers have on the ground to be able to take those calls. Right. So, Faisal, a question. So, in today's environment, and I'll put the same question to all the panel, with cost increases affecting the entire construction sector, right? So that does translate into future potential higher rentals for the retail sector as well. Have you guys, as mall owners, thought of how this could be potentially tackled? To be honest, I don't think anyone saw the kind of cost increases that has happened over the last maybe 18 months. We were starting our project in Lahore. At that time, we saw the dollar at maybe around 150, 160. And if you put a normal escalation, you end up somewhere around maybe 180, 190. Whereas what you see now is completely a different ball game. I think at the moment, there's no straightforward answer to that. The thing is, with the market, the hope is to build a good product and try to grow the market as best as possible. So there's two ways of doing business. One way is to keep cutting costs, and one way is to push for growth. And you can only cut costs by a certain amount of margin, after which the quality of everything starts going down.
So we've always given that from old retailers and from old business people, we've always given the example of a shop which is not doing well. One option is to try to market it. The other option is to start cutting back, start closing lights when customers aren't there, start closing air conditioning when people are there. But when you cutting costs does not increase business. It's only a very, very short-term measure. Eventually, if the business does not increase with the cost levels, then there is a long-term issue and that needs to be tackled. So at the moment, our focus is towards trying to drive that growth. And as Yasir put very nicely in the beginning, there is a huge amount of potential in the country which has not been tapped yet. And it always surprises us, we know, even with all the shocks and everything that's coming in, how our market compares to the other international markets when they face a similar kind of shocks. So we have a lot of faith in that growth process, and we would like to be able to give that opportunity to and the retailers together to the customers to be able to experience that by delivering new products. And again, one thing I'd also like to add on, which Yasir just said, that I think at the moment most of the big malls have capacity issues because they're almost all full now, and there is a demand for space, but there is no availability of space. So that also gives you a signal of the available potential in the market and the amount of space that can be potentially added on with the right opportunities. Right. Yasir, if I may pitch the same question to you, do you think any kind of technological innovation, for example, the shoe brands require space because our shops themselves are very expensive, and so maybe if malls start planning spaces where there can be centralized warehousing, maybe that could be a win-win for retail. What do you think in terms of the future? Because आज भी अगर आप देखें जो retail space अगर किसी को नहीं मिल रहा, ऑनलाइन जो ब्रांड्स वेस्ट में करती हैं वो ये करते हैं, दे बाय सेल्फ स्टोरेज, और सेल्फ स्टोरेज ख़रीद के वहाँ पे वो अपने आइटम स्टॉक कर लेते हैं और नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये चीज़ पाकिस्तान में भी की जा सकती है. आइडिया था रिवॉल्व्स अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर सेंटोर्स का एक ऐप होगा जिस ऐप के ऊपर सब ब्रांड्स आ रहे होंगे, इट्स अ सप्लीमेंट ऐप, एंड उस ऐप पे सिर्फ आप वहाँ पे उस सेंटोर्स मॉल की इन्वेंट्री नहीं देख रहे होंगे, उस ऐप के ऊपर आप पूरी रीजन की इन्वेंट्री देख सकते हैं कि वो इन्वेंट्री गिगा मॉल में मौजूद है, सफ़ा मॉल में मौजूद है, या सेंटोर्स में मौजूद है. वहाँ से अगर कोई कस्टमर बाय करता है, क्लिक एंड कलेक्ट, एक कलेक्शन पॉइंट लगा लें वहाँ पे, दिस इज जस्ट एनहांस योर, दिस इज बेसिक आइडिया. लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं. पाकिस्तान कि रिटेल अभी उस प्राइस पॉइंट पे नहीं पहुंची कि मैं कहूँ कि आउटलेट मॉल्स बनाएं. आई थिंक वी स्टिल फार फ्रॉम दैट. आज भी अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, आम बंदा भी ले सकता है. मैं आर्टिकल्स जो देखें जो डिजिटल प्रिंट हो रहे हैं, 1200, 1500, 1800 रुपये का एक आर्टिकल बिक रहा है, तो ख़वातीन वैसे भी एक हफ्ते में दो चेंज करती हैं. सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द इशू. टेक्नोलॉजी विल ओनली सप्लीमेंट बट इट विल नॉट रिप्लेस द फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है. अगेन लाइक आई सेड, जो लोग प्रेफर करते हैं, और मैं इस चीज़ पे एक चीज़ प्रोटेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे दोस्त हजरात बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में और प्रपोज कर रहे हैं कि 6 बजे दुकानों को बंद किया जाए, ये आई थिंक उनका ख्वाब है, और ख्वाबों की ताबीर मुश्किल से मिलती है लोगों को. तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट डूएबल. पाकिस्तान का वो कल्चर नहीं है कि लोग यहाँ पे 8 बजे सो जाएं और 8 बजे उठ जाएं और 10 बजे शॉपिंग के लिए निकल आएं. इट डजंट हैपन. GST और इनकम टैक्स, इमेजिन बिलियंस का लॉस होगा हुकूमत को इफ दे इवन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग. दिस इज़ कॉमन सेंस. सो हम यही चाहते हैं कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है लोगों का, रिटेल इज़ नाउ एन एक्सपीरियंस. और इसमें असद साहब से ये बात हो रही थी कि आज जो इम्पोर्टेंस है फिट आउट का, वो इक्वली एज मच है एज दी प्रोडक्ट इटसेल्फ. के कस्टमर को जो एम्बियंस मिलता है, जो इन्वायरमेंट मिलती है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. उससे वो कस्टमर कहता है कि वो स्टोर पे आ रहा है, वो अच्छा है, उसमें फ्रेगरेंस है, उसकी वॉक थ्रू अच्छी है, उसमें स्पेस प्लानिंग अच्छी है, तो वहाँ जाकर देखते हैं. अगर वो एक घुटन वाली जगह पे जाएगा, जाते साथ ही वो बाहर निकल जाएगा. सो आई थिंक मॉल्स हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इवन इन द फ्यूचर टू कम. Yeah. So, Usman, if I may pitch this question to you now, from a brand's perspective, we do know this is a collaborative effort. When we make the malls understand some of our needs, and some of those needs will be very easy for them to provide to us, just like centralized warehousing. What do you think is required from us that it would be critical for the future of both the retailer and the mall? Thank you, Asif, for having me here. जी, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. बेसिकली जो हम ब्रांड की बात करते हैं ना और मॉल की बात करते हैं, सो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि रिटेल की जो एवोल्यूशन है ना, उसको आप रोक नहीं सकते. तो जो एवोल्यूशन थी वो मॉम एंड पॉप से आप स्टोर खोलने शुरू किए, बड़े स्टोर किए, फिर आप मॉल पे आए, और उसके बाद आप आ गए बेसिकली
इंटरनेट के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर। और अब आप जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो कनेक्टेड कॉमर्स के ऊपर है, ठीक है। अब वो जो कनेक्टेड कॉमर्स है वो सारा डिफ़ाइन करेगा कि हम किस तरफ जाएंगे मॉल्स के साथ। और जो अभी नदीम ने, फैसल ने बात की, फैसल नदीम ने, कि पोटेंशियल बहुत बड़ा मार्केट में, बट एवोल्यूशन जो है ना, और वो ट्रेन चल पड़ी है हमारी तरफ, और हमें अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है ना वो ये होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, और वो कस्टमर वो नहीं जो मैं हूँ, कस्टमर वो जो आगे आ रहा है जिसकी एज 15 साल है, 20 साल है, और फिर हर साल नया इवॉल्व हो रहा है। वो जो नया कस्टमर है वो कनेक्टेड कॉमर्स पे काम कर रहा है, उसका मॉल जाने का भी ज़्यादा शौक नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो एक्सपीरियंशियल रिटेल का एक हमारी रिक्वायरमेंट है जो मॉल की है, लेकिन मॉल सिर्फ नहीं कुछ कर सकता, इट इज़ अ म्यूचुअल एफर्ट, ठीक है। और होगा ये कि अगर मैं 3 वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ हमेशा मॉल्स के लिए, कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी, कनेक्टिविटी एंड ट्रस्ट, ये 3 चीज़ों पे अगर हमने मिलके काम किया एक दूसरे के साथ, तो किसी मॉल ने पीछे नहीं, कोई मॉल पीछे नहीं हटता और ना कोई रिटेलर पीछे हटेगा, ठीक है। और जहाँ ये ट्रस्ट ख़त्म होगा या ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती है, वहाँ हम पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है और एक बैड टेस्ट क्रिएट होता है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों चीज़ें हम फॉलो करें फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिकॉज वो ट्रेन आ रही है और मॉल्स की एवोल्यूशन टूवर्ड्स ई कॉमर्स होगी। अगर मॉल ने एक्सपीरियंस, कनेक्टेड कॉमर्स का एक्सपीरियंस नहीं दिया तो वो फंस जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि नया कस्टमर अगर आप देखेंगे, यंग कस्टमर, इवन यंगेस्ट कस्टमर इज़ नॉट मूविंग टूवर्ड्स मॉल बिकॉज उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए था। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अभी थोड़ा सा पीछे है उस एवोल्यूशन में। 2 से 3 साल बाद ये एवोल्यूशन आएगी और वो ट्रेन हमें हिट करेगी। तो उससे पहले एज पार्टनर्स, ब्रांड्स विद मॉल्स, वी आर पार्टनर्स, हमने ये इवॉल्व करना है। दूसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ मॉल की हमसे भी है, हमारी उनसे भी है, मिलके हम काम कर रहे हैं। कनेक्टेड कॉमर्स के अंदर जो पोटेंशियल है, मैं एक बात कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। 25% ई कॉमर्स बिजनेस अब बहुत सारे ब्रांड्स का हो गया है, ठीक है जी। कुछ 30 से 40% में पहुँच गए हैं। तो क्या मॉल को वो बिज़नेस नहीं चाहिए? मॉल को वो बिज़नेस चाहिए और हमें भी सपोर्ट चाहिए फुलफिलमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ी देर पहले एक फिनटेक की बड़ी अच्छा पैनल चल रहा था, आई रियली लाइक द चैनल, वो पैनल जिसके अंदर उन्होंने बात की कि ओमनी चैनल एक गिमिक वर्ड स्टार्ट हो गया। और ओमनी चैनल की बातें हवा में सारी, बिकॉज हम COD पे चल रहे हैं। 95% सारा COD है, आप ओमनी चैनल कहाँ से करेंगे, ठीक है। ओमनी चैनल का मतलब है एक इन्वेंट्री आज मैंने ऑर्डर किया और इन्वेंट्री जो है 10-15 दिन के लिए फंस गई और कस्टमर ने वापस कर दी, मेरा लॉस हो गया ना। हमने ये सोचना है विद मॉल्स कि ग्रोथ फ्यूचर में कनेक्टेड कॉमर्स की है और मिल के टेक के ऊपर काम करना होगा हमें, कि किसी तरह हम जो अपनी ट्रांजैक्शंस हैं उसको डिजिटाइज करें। तो ये सब ने मिल के काम करना है, जिसमें मेजर सपोर्ट होगी वो टेक की होगी। और अगर हमने ये टेक सपोर्ट में नहीं मिल सकी, जो मिलेगी बिकॉज पूरी दुनिया में मिल रही है, तो ये एवोल्यूशन होनी है, लेकिन उसकी स्पीड अप हो जाना चाहिए उसको। सो एज आई सेड कि ये दोनों तरफ से ताली बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो मिलके इस पे काम होगा। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये एवोल्यूशन अगर हमने नहीं की कनेक्टेड कॉमर्स की तरफ, तो मॉल्स जो हैं, ठीक है, ये फेड अवे होने शुरू हो जाएंगे। और ये फेड अवे अगले 5 साल में आपको नज़र आएगा, ठीक है, अगर ये कनेक्टेड की तरफ नहीं गए 5 से 10 साल में। तो हमें मिलके इनके साथ एक्सपीरियंशियल रिटेल एक्सपीरियंस पे जाना है। अभी US में एक स्टोर है, एक मॉल है, बहुत बड़ा मसला आया उनको, डिपार्टमेंटल स्टोर चल नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया, 4 लाख स्क्वायर फुट खाली पड़ा हुआ था, डिपार्टमेंटल स्टोर चल नहीं रहा था। उन्होंने उसको क्या किया, उसको ख़त्म किया, सारे रिटेलर्स को वहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर का ऑप्शन दे दिया कि अपने कस्टमर्स को पिकअप पॉइंट्स वहाँ दे दें और वहीं से फुलफिलमेंट कर लें, ठीक है। सो हमें अभी हम स्टेज पे नहीं आए, बट वो स्टेज आ जाएगी, बिकॉज कस्टमर बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है इसके ऊपर, डिजिटाइजेशन के ऊपर। आप ये सोचें कि हम लोग एज ए आउटफिटर्स ब्रांड 2%, 3% पे 4-5 साल पहले थे, अब 20% से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि हर साल 50 से 60% ग्रोथ आ रही है, ठीक है। कुछ ब्रांड के हमारे 2 ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड के ऊपर 70-80% ग्रोथ आ रही है। तो रेवेन्यू कहाँ जाएगा, कहाँ से निकल रहा है, कहीं से तो निकल रहा है, ठीक है। हो सकता है वो मॉल से निकल रहा हो। तो हम लोग मिलके जब काम करेंगे तो मॉल के लिए अपॉर्चुनिटी ये है
कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे के सब मिलके काम करें, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर जाएं, फुलफिलमेंट सेंटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये मेरा पॉइंट तो इसके ऊपर ये होगा जी वासिफ। राइट, तारिक भाई, एनी इनपुट फ्रॉम यू एज वेल कि हमारी आगे जो कोलैबोरेशन विद मॉल्स और ये जो चैलेंजेस बता रहे हैं उस्मान, वेरी रेलेवेंट, कि वी सी एन इशू कमिंग, और आज स्टेक होल्डर सारे बैठे हैं, वो 2-3 क्या इशूज़ हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारी एग्रीमेंट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि जो हम बात कर रहे हैं ना विद इन पाकिस्तान, उसकी भी डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। मॉल्स अगर इस्लामाबाद में है और सेंटोरस है तो और बात है, अगर डोलमन कराची में है तो और बात है। लाइकवाइज आप जब छोटे शहरों में जाते हैं या कम्युनिटी मॉल्स में जाते हैं तो उसकी नीड डिफरेंट है। ऑनलाइन सेल कितनी कन्वर्ट हो रही है, कितनी बिज़नेस मॉल्स में किस किस्म का होगा, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन आज अगर हम बात करें राइट नाउ जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, बीइंग रिटेलर, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मॉल में बिज़नेस करने की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। कैम और यूटिलिटीज़ और जनरेटर्स के जो बिल है, इवन इसी मॉल में हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी आप अगर देखें तो एक साल में आपकी तकरीबन 100% जो इंक्रीज़ हुआ है आपका बिल। तो मेरा ये ख्याल है कि एक चीज़ अब हमें इसके अलावा सोचनी है कि हमें अपनी टाइमिंग, और टाइमिंग भी प्रोडक्टिव टाइमिंग, उसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले हम टाइमिंग के ऊपर सोचते थे कि यार कोई बात नहीं, बिजली सस्ती है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं तो हम लेबर को मैनेज कर लेंगे। अब आपकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। मिनिमम वेजेस को अगर आप देख लें, इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, अदर कॉस्ट को देख लें, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पहला इनके साथ, मॉल्स के साथ जो बैठ के जो डायलॉग करने वाला है वो इफ़ेक्टिव टाइमिंग की बात है। इस काम को अगर हम नहीं करते तो हम हर क्राइसिस के बाद जो पहली चीज़ फेस करते हैं, इवन कि आज सुबह भी लाहौर के कमिश्नर के पास टाइमिंग के ऊपर मीटिंग थी, और कमाल ये है कि अगर आपके पास कोविड है, अगर आपके पास सैलाब है, अगर आपके पास बिजली नहीं है, अगर आपके पास फॉग है, एक ही काम हुकूमत को करने का है, वो है रिटेल की टाइमिंग रिड्यूस कर दें या डे ऑफ कर दें। तो वी हैव टू प्लान कि एक फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाई जाए इसके ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। मैं अपने रिटेलर्स और मॉल्स वालों से ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमने ये पॉलिसी ना बनाई तो जितनी स्टेट मशीनरी है उनके लिए सबसे खूबसूरत काम है, डिप्टी कमिश्नर साहब अल-फतह को बंद करे तो ख़बर लगती है, जेदी पान शॉप को बंद करे तो ख़बर नहीं लगती। सो ही वुड लव टू गो एंड सील अल-फतह या रॉयल टैग या एनी बॉडी। तो हमें इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है कि हमें टाइमिंग क्या देनी है। सेकेंडरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और वो जितने डेवलपर्स हैं, न्यू डेवलपर्स, उनके ऊपर बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉलमन जैसे ग्रुप, ना मैं सेंटोरस जैसे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मॉल कैसे बनाना है, उसका लेआउट बनाना नहीं आता, उसकी सर्विसेज डिज़ाइन करनी नहीं आती, उसको कस्टमर एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना नहीं आता। वो 9 फुट के ऊपर छत डाल देता है, फिर आके हमें कहता है कि जी आप देखें। वो हमें अंदर जाते हैं तो हमें लगता है कि छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की है। सो मेरा ये ख्याल है कि एज ए चेन स्टोर हमें इस काम को भी लेके चलना है। हम बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मिल रहे हैं, इवन कि हम DHA के साथ भी हमने बात की है, और जितने अच्छे हैं जो भी मॉल बनाना चाहता है या जो भी रिटेल डेवलप करना चाहता है, हमें उन्हें कहते हैं जी आपने हमारे ऊपर पैसा लगाना, आप बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, आप हमारी इंडस्ट्री पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ तो लें कि आपने पैसा लगाना कहाँ है, लगाना भी है कि नहीं लगाना। सो ये एक हमारा कोलैबोरेशन भी है। हमने फैसल नदीम से भी कराची में डिस्कशन की कि कम्युनिटी मॉल्स हैं या छोटे एरियाज़ को डेवलप करना है तो उसमें हम एक लर्निंग कर्व से गुज़रें और सब मिलके बैठ के बात करें। और लास्टली एक बड़ी कमाल बात है कि निशात और पैकेजेस के बाद अब डोलमन लाहौर में बनने जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमारे हवाले कर देते हैं। इनके इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर दे के ये वो डिज़ाइन करवाते हैं, और हमारे देसी से हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं। हम कहते हैं यार तू भी पैसे मांगेगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि डिज़ाइनर को पैसे ना दिए जाएं या कॉस्ट रिड्यूस कर ली जाए। तो मैं नहीं समझता कि इनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हमारा स्किल है, हमारा डिज़ाइन, हमारी जो फोर्स, हमारा मटेरियल, हमारी जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक का या कोई और, वो भी उसके मुताबिक है। तो मेरा ये ख्याल है कि आगे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और उसके रिलेटेड तमाम चीज़ों के ऊपर भी डायलॉग करने की ज़रूरत है। और फिर जैसे सेंटोरस में अभी आग लगी तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको मैनेज कर लिया।
ये अब सबसे बड़ा फियर है कि अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, आपके सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, तो एक की गलती सैकड़ों ने भुगतनी है, और वो एक लम्हा जो है ना आपको शायद वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देता रहे कि उस वक्त हम ये कर लेते तो या वो कर लेते। सो मॉल इज़ अ ट्रिकी बिज़नेस। मॉल में जो कोलैबोरेशन है, जो क्लस्टर है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को हम डेवलप करते हैं, वो उतना ही रिस्की है कि जो एक का फेलियर है या एक की गलती है वो सबके गले पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके ऊपर मॉल्स की एसोसिएशन और चेन स्टोर या रिटेलर्स को बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि हमने बनाना क्या है, बनाना कैसे है, बनाना कहाँ है और बनाना क्यों है। पिंडी की अगर मैं एग्जांपल लूँ, दोस्त पिंडी से भी आए बैठे हैं, तोकीर शेख भी बैठे हैं। पिंडी में 200 बिल्डिंगें हैं, 250 ब्रांड हैं। अब मुझे बताएं, एक एक बिल्डिंग में एक एक ब्रांड दे दें, या अगर 20-20 ब्रांड या 30-30 ब्रांड भी एक एक बिल्डिंग में चले गए और बाकी बिल्डिंगों उसको सक्सेसफुल होने के लिए 100 ब्रांड चाहिए, तो सारी की सारी बिल्डिंगें फेलियर में चली जाएंगी। भले आप हमें रेनोवेशन कॉस्ट दें, भले आप अट्रैक्टिव एग्रीमेंट दें, आप कमीशन बेस कर लें, लेकिन वो वाइबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेली की कॉस्ट है। हमारी इन्वेंट्री पेरिशेबल आइटम की तरह है, आज वो ताज़ा है, शाम को वो बासी है। तो हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, और ये रिटेल के ऊपर इतना सादा नहीं है कि मॉल वर्सेस चेन स्टोर, ये डायलॉग है। इंशाल्लाह इसमें हम काम करते रहेंगे। मैं थैंक यू कहता हूँ फैसल को भी कि उन्होंने ज्वाइन किया, यासर इस्लामाबाद से चल के आए। तो ये इस चीज़ की अक्कासी है कि ये हमारे साथ बैठना चाहते हैं, ये हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ये समझते हैं कि अब रिटेल के साथ एक कोलैबोरेशन करना है, वरना मॉल या रिटेल एक दूसरे से मिलता ही नहीं था। Thank you very much. I know we're short of time, so we'll end it here. Faisal, thank you very much. I know you weren't well, so a special thank you to you for dialing in on Zoom, and thank you to the panel again.